قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ ایران امریکہ تعمیری مذاکراتی عمل کے دوران فوجی حملے کیے گئے، کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ کہا پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران آ گئے۔ اگر ہم نہ بولے تو وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اور بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع۔ بھارت کے طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کی بندش 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی، نوٹم جاری۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فردو جوہری پلانٹ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ صوبہ قم کے حکام کی فردو ایٹمی سائٹ پر اسرائیلی حملے کی تصدیق۔ تہران میں جیل اور جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر بھی تازہ حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے تہران میں شاہد بہشتی یونیورسٹی اور سرکاری نشریاتی ادارے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کے 10 اہلکاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے 15 طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے۔ اسرائیل نے ایران کی جیل پر میزائل سے حملہ کیا اور جیل میں سنگین جرائم کے قیدی اور سیاسی مخالفین قید ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، ایران نے مشرقی آذربائیجان میں اسرائیلی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی میڈیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حملے میں خیبر شکن، عماد، قطر، فتح 1 میزائل استعمال کیے گئے۔ تل ابیب، یروشلم، اشدود سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ میزائل حملے میں جنوبی اسرائیل میں بجلی منقطع ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل کا ہرمس 900 ڈرون مار گرایا۔ تباہ شدہ اسرائیلی ڈرون کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون کو خرم آباد میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے تہران اسٹاک ایکسچینج تحقق ثانی بند کر دی۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ ہم ختم کریں گے۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے امریکہ کے خلاف طاقتور آپریشنز کا اشارہ دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے بعد اہم فیصلے متوقع۔ روسی صدر نے کہا ایرانی عوام کی مدد کریں گے۔ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے۔ ملاقات ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ عباس اراغچی نے کہا روس اور ایران کے دشمن مشترکہ ہیں۔ UN ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا UN کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا ہے۔ ایران پر امریکی حملے بین الاقوامی نظام کی تباہی اور مکمل ناکامی ہے۔ عالمی ادارے کی عدم فعالیت سے بحران بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایک ایٹمی ریاست کی جانب سے غیر ایٹمی ریاست پر یہ حملہ NPT قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. ہمارے خطے میں بھی ایک نتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا۔ جہاں ہم گئے ہم نے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ہمارا فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصر منیر صاحب، ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا۔ کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران کی خود مختاری کو کسی بھی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے خطے کی عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا گیا۔ پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران آ گئے۔ اگر ہم نہ بولے تو وہ ہم پر بھی آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔
इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब। कहते हैं भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत, हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। अब ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएथिकल। जी बिलावल साहब। कौमी असेंबली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर ने उमर अयूब को बोलने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की फिर हंगामा आराई और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर ख़जाना का घेराव करने की कोशिश। रुकन असेंबली इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। ऐवान में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में भी झड़प। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह और PTI के निसार जट में हाथापाई। दीगर अरकान ने बीच बचाव करा लिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। नौ मई के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जमानतों पर फैसला कल सुनाएगी। अदालती अमले ने कमरे अदालत में मौजूद PTI कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया गया। पहले से मंजूर शुदा डैम्स पर काम जारी रखा जाएगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। आवाम के इस्तेहसाल की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐवान में खिताब। मौजूदा बजट मुर्दा बजट है। मिनी बजट आएंगे। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा हुआ। दलदल से निकलने के लिए मुल्क को बानी की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तुर्किया में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर वज़रा की सतह पर राबता ग्रुप कायम करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वजारती राबता ग्रुप इलाकाई फरीकैन से राबता कायम करेगा। राबते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए होंगे। आलमी बरादरी जारियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाब दे ठहराए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमन को मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई रोक कर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। एंटोनियो गुतरेस के अमरीकी हमले पर ईरान के हक में बयान पर रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज आग भगोला। बोले अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा ईरान के साथ खड़ी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीकी माली इमदाद पर भी सवाल उठा दिया। पाकिस्तान की ईरान
ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत, ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार, पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा, ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं, सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया, अमरीकी हमलों से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई, मुश्किल की घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, अमरीकी कायम मुकाम एलची ने अपने खिताब में कहा, ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया, हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते, ईरान अमरीका और इसराइल को खत्म करने के नारे लगाता है। अमरीका का हमले के बाद ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा, रजीम चेंज की इस्लाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता, ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो, हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे, ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है, अगर तेहरान एटम बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जौहरी मकामात पर हमले की कामयाबी पर खुशी का इजहार, अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात करेंगे, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक है, सहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, इसे सजा मिलेगी, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सहूनी दुश्मनों को खौफनाक सजा देने के आज़म का इजहार, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकियों को उनकी जारियत का जवाब जरूर मिलेगा, इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है, ईरानी वज़ीर दिफा अमीर हातमी का कहना है, अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जुर्म किया उसे मुंह तोड़ जवाब मिला और इस बार भी ऐसा ही होगा, हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त में वसअत आ चुकी है, अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान मशरिक़ वस्ता को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे, तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का मुतालबा, मुश्तरका बयान में कहा कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना और खत्ते में अमन कायम रखना है, यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि इस मकसद के लिए तमाम मुताल्लिका फरीकैन से ताउन पर तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता, ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत का ऐलान, कहा दुनिया ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ट्रंप ईरान पर हमले के असल मंसूबे को छुपाना चाहते हैं, उन्होंने अपने सीनियर मुआवनीन को 2 हफ्ते की डेडलाइन का ऐलान करने का कहा, ईरान से मुताल्लिक 2 हफ्ते की डेडलाइन के पसे पर्दा मुहर्रिकात आया है, अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को खुफिया रखना चाहते हैं, ट्रंप मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश ईरान पर हमलों की पेशगी खबरों पर नाला थे, 2 हफ्ते की डेडलाइन का बयान असल मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए था, ट्रंप का हतमी प्लान उस वक्त सामने आया जब जहाज ईरान पर हमले के लिए फिजा में थे।